Good morning students, how are you all? Today we are going to solve worksheet number 5. Chapter number 4, sorting materials into group. Question number 1, choose the correct option. Which of the following liquids get completely dissolved in water? Groundnut oil, kerosene, petrol or vinegar? So vinegar gets completely dissolved in water. Which of the following is not made of wood? Chair, table, frying pan and plow. So frying pan is not made up of wood. Which of the following is not a material? Plastic, iron, pen and wood. So pen is not a material. Which of the following is soluble in water? Sugar, sand, kerosene, wax. So sugar is soluble in water. Which of the following liquid is miscible in water? Vinegar, kerosene, coconut oil and oil. So match the following. Copper is hard, that is B. Wax is soft, that is D. Glass, it is transparent, that is A. And mixture of water and oil do not get mixed with each other. State true or false. Gold is not a metal. False. Rice is edible material. It is true. Petrol is miscible with water. False. A huge piece of ice sink in water. False. Answer the following in one sentence. What is the importance of oxygen gas dissolved in water? Oxygen gas dissolved in water is very important for survival. यानी ऑक्सीजन गैस जो पानी में डिजॉल्व होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. What is the similarity between oil, kerosene and water? The similarity between oil, kerosene and water is that they are all in a liquid state. Name the two gases which are soluble in water. Oxygen and carbon dioxide are soluble in water. In iron chair, what is object and what is material? In iron chair, a chair is an object and iron is a material. List 5 materials that float on water. 5 materials that float on water are wood, plastic, cork, thermocol, sponge and rubber. क्योंकि ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं और लाइट वेट मटेरियल ही पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. डिफाइन द फॉलोइंग. ओपेक मटेरियल. द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल. जो मटेरियल से पूरे तरह से लाइट पास नहीं होती है तो हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं. सो द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड एज ओपेक मटेरियल. नाउ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसल्यूसेंट यानी जो मटेरियल के हम पूरी तरह दूसरी तरफ देख सकते हैं जैसे कि ग्लास, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. यानी हम देख सकते हैं लेकिन जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है उससे लाइट पूरी तरह पास नहीं होती है. राइट तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. गिव पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल. द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जो मटेरियल से हम क्लियरली देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल. जो मटेरियल से हम क्लियर नहीं देख पाते हैं मीन्स हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपेक मटेरियल. ग्लास एंड वाटर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. आयरन एंड वुड आर ओपेक मटेरियल. ऑन वॉट बेसिस डू वी सॉर्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हम कौन सी बेसिस पे सॉर्ट करते हैं?
Objects are sorted on the basis of their appearance, hardness, solubility, transparency and whether it floats or water or sink in water. Objects जो होते हैं वो अपने अपीयरेंस पे, हार्डनेस पे, सॉल्युबिलिटी पे और ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड होते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट भी होते हैं और कुछ हैवी होते हैं, वो वाटर में सिंक भी करते हैं, राइट. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन differentiate or we can separate the objects. Why is wood not used for making cooking utensils? Food is cooked in utensils and hence utensils are often heated. अब हमें खाना बनाना है तो हमें फूड को कुक करने के लिए फ्लेम पे रखना होता है, उसे गर्म करना होता है. If cooking utensils were made of wood, they would catch fire. अब वुड के बने वेसल्स होते हैं तो वो फायर के ऊपर रखते हैं तो उससे फायर लग सकती है. As soon as they are kept on gas stove, जैसे ही हम गैस स्टोव पे रखेंगे तो वुड जो है वो बर्न करने लगेगा. सो यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स आर नॉट मेड अप ऑफ वुड. What are the benefit of grouping materials? Grouping materials has the following benefits. Similar objects are placed together, making them easier to locate. ग्रुपिंग से क्या होता है, सिमिलर हम ऑब्जेक्ट हम एक जगह पे रखेंगे ताकि वो लोकेट करना इजी होता है. डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट इजियर टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. अगर हम उसे सेपरेट करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत इजी होता है. ग्रुपिंग ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी द पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल. यानी कौन सी पैटर्न से ये प्रॉपर्टीज उसकी बनती है मटेरियल की, वो भी फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है और स्टडी करना भी इजी होता है. इट बिकम्स इजी टू टेक स्टॉक ऑफ मटेरियल. मटेरियल का स्टॉक रखना भी बहुत इजी हो जाता है. ऑल्सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द शॉर्टफॉल ऑफ द मटेरियल. हमें मटेरियल यूज हो गया है और उसकी शॉर्टेज है तो भी हमें पता चल सकती है, राइट चिल्ड्रन. So with this we complete our worksheet. After watching the video children, you will write the questions and answers you will write without seeing from the video. तो वीडियो देखकर आपको आंसर्स बाय हार्ट करने हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर्स आपको बिना देखे लिखना है, राइट चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन.